हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग और एक कुछ न्यूमेरिक और एक आज और एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। दैट इज़ हमारा सुपर हीटेड कंडीशन हो तब हमको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नाउ आई विल रीड द न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल डू इट. The refrigeration machine using a R12 as a refrigerant operates between the temperature of 30 degrees and minus 30 degrees. The compression is isentropic and there is no undercooling in the condenser. The vapor is dry saturated condition at the beginning of the compression. So estimate the theoretical coefficient of performance. Take CP superheated vapor at is 0.64 kilojoules per kg Kelvin. So the condition, the vapor is dry saturated condition at the beginning of the compression. Beginning of the compression is it is in a dry saturated. It is in a dry saturated. So the value will comes really. Now it will be in a superheated condition. So before compression it is dry saturated, means after compression it is in a superheated condition. So now we will. It is in R12 refrigerant. Given data. So I will draw a given data, that is T1 is equal to minus 6 degrees plus 273. It comes हमारा 264 Kelvin. T3 is हमारा 36 plus 273, that is 309 Kelvin. 309 Kelvin. So right. Now I will draw the diagrams TS and PS. कैसा हम लोग ड्रा कर सकते हैं? So ये हमारा TS डायग्राम है, ये हमारा PH डायग्राम, राइट. सो TS डायग्राम को देखेंगे पहले हमने. TS डायग्राम में हमारा क्या हो रहा है, राइट. TS डायग्राम में हमारा क्या होता है, पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे देखे तो हमारा फर्स्ट it is dry saturated, that's why dry saturated condition. Finally it's a superheated and then it will be converted into the dry saturated. There is no undercooling, so the figure like यहाँ पे हमारा हो जाता है. सो सेम हमने फिगर को देखते हैं. यहाँ पे इट इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन, सुपर हीटेड, ये हमारा एंथैल्पी इज कांस्टेंट, ये 1 2 2 डैश 3 4. सेम यहाँ पे 1 2 2 डैश 3 4. ये हमारा T1 है. T1 इज इक्वल टू T4. यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T3 हमारा. यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P4. यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P3, राइट. P2 इज इक्वल टू P3. सो हिट इज इन H1, हिट इज इन H2, HF3 is equal to H4, right. So now we will solve this equation because of it is in a superheated condition. It is not a wet condition, it is not a dry saturated condition, but it is in a हमारा superheated condition, right. Superheated condition. So in superheated condition here S1 is equal to हमारा S2. S1 is equal to हमारा S2. S1 is equal to S2. ये टोटली हमारा सुपरहीटेड कंडीशन, सुपरहीटेड वेपर कंडीशन का पास में हमारा क्या वैल्यू था, हमारा वेपर कंडीशन का पास में S1 is equal to S2, दैट इज हमारा S1 is equal to S2 बने 0.6986. मीन्स हमारा टेम्परेचर, यहाँ का हमारा टेम्परेचर का करस्पॉन्डिंग वेपर कंडीशन है. इट इज नॉट ए वेट कंडीशन. डायरेक्टली वी विल टेक द वैल्यू, दैट इज 0.6986, राइट. 0.6986, राइट. 0.6986. हियर वन मोर टेम्परेचर, हियर there is no undercooling. The theoretical coefficient of this one
हमने T2 का हमने टेम्परेचर पता नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट द T2 टेम्परेचर आल्सो, बट इट इज वन ए T2 डैश टेम्परेचर। यहाँ पे हमने T2 डैश इज इक्वल टू T3। सो नाउ we will find out the T2 value. We don't know the T2 value, how it is. So now we will find out that S1 is equal to S2, that is 0.6986 kilojoules per kg Kelvin. So 0.6986 kilojoules per kg Kelvin. So let it be S2 dash is equal to हमारा 0.6836 बिकॉज ऑफ यहाँ का जो वैल्यू है ये वेपर कंडीशन का, दैट इज 0.6836, राइट, एसजी का कंडीशन। सो लेट अस हमारा S2 इज इक्वल टू, हमने ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं S2 प्लस 2.3 CP T2 बाई T2 डैश 2.3 CP लॉग हमारा T2 बाई T2 डैश करके हमने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, इसको हमने फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा वो कंडीशन को हमने फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने पुट कर देंगे वैल्यूज को। S2 डैश हमारा कितना है 0.836 2.3, CP हमको दिया है, यहाँ पे कितना दिया हमारा CP वैल्यू, CP दिया है 0.64, यहाँ पे 0.64 पुट द 0.6 लॉग हमारा T2 हमारा कितना दिया है, T2 डैश दिया, T2 इज अननोन, T2 डैश हमारा कितना था, दैट इज T3 का करस्पॉन्डिंग 309 केल्विन, राइट। 309 पुट कीजिए, 309 पुट कीजिए, राइट। सो नाउ we will calculate the T2 value। S2 वैल्यू कितना था 0.6986, 0.6986, राइट। ये सारा हमने 0.6986, इसको हमने ऐसा करते 0 लॉग हमारा यहाँ पे रहेगा T2 बाई 309 रहेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 0.6986 minus 0.6836 divided by 2.3 into 0.64, right, 0.64. Now I will do calculation for this one, 0.6986 minus 0.6836 0.68 हमारा 6 था, 0.6986 0.36 divided by 2.3 into 0.64. So the value comes nearly 0. हमारा sorry, not divided, here it will be an a minus, sorry, I am rather mistake here, it will be an a minus, right. So it is an important while how you are doing, right, the game 0.0 हमारा 0.0101 करके हमारा आया है। तो if any doubts you again you can calculate it, that is 0.6986 minus 0.6836 divided by 2.3 into 0.64, right, 0.101, 0.01019, right, it is log हमारा T2 by 309, right। अगर लॉग हमारा उधर कर देंगे तो क्या होगा, हमारा लॉग जो है हमारा उधर कर देंगे तो क्या होगा, हमारे लॉग को हमने उधर कर देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा T2 बाय 301, हमारा वैल्यू आएगा 10.206,
लॉग हमने उधर कर दे तो हमारा 0.01019, तो हमारा आएगा वैल्यू 1.026 वैल्यू आएगा। देन T2 इज इक्वल टू 309 इंटू 1026, ये हमारा कितना होगा, हमारा उधर हमने अगर कर दिया रहे तो हमारा वैल्यू आएगा इसका, हमारा वैल्यू कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं वो वैल्यू हमारा आया है हमारा यहाँ पे हमने कर देख सकता है, तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं 309 इंटू 1.026 केम 317.034 इज इक्वल टू, ये केल्विन में है, 31.034 केल्विन। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द H1 वैल्यू हमारे करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट ले लेंगे 185.80, क्योंकि ड्राई सैचुरेटेड है, 185.80 किलो जूल पर केजी। H2 वैल्यू हमने करेंगे, H2 वैल्यू कितना है हमारा, H2 वैल्यू हमने करेंगे H2 डैश हमारा प्लस CP इंटू T2 minus T2 dash, whenever we are doing the derivation that time we done this one। H2 dash वैल्यू कितना है 201.8 प्लस 0.64 T2 वैल्यू 317.034, T2 डैश वैल्यू हमारा कितना है, T2 डैश वैल्यू 309 था। If you calculate this thing, so 317.034 minus 309 into 0.64 plus 201.8 comes, it will be 206.932 941 kilojoule per kg, 901 per kilojoule per kg 9। So now HF3 वैल्यू हमारा H4 वैल्यू करस्पॉन्डिंग हमारा कितना था, HF3 वैल्यू 70.55 किलोजूल पर केजी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 70.55। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए COP इज इक्वल टू हमारा H1 minus HF3 by H2 minus H1। So what is H1? H1 value is हमारा 185.80 minus HF3 value कितना है 70.55 divided by 206.941 minus 185.80। So if we calculate this one, how much will it will comes 185.80 minus 70.55 divided by 206.941 minus 185.80, right, 80. So the value comes nearly 5.45। सो स्टूडेंट्स इस तरीक़ा से हम लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब हम लोग सॉल्व कर सकेंगे ये हमारा हो सकता है कि हमारा न्यूमेरिकल सही है कि नहीं, हम लोग को चेक करना है। सो यहाँ पे हमने देखे है ये लॉग अगर उधर चला जाएगा हमारा एंटी लॉग हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हमने एंटी लॉग किया है 10 पावर, यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको शिफ्ट 10 पावर x होगा, आप शिफ्ट मार के 10 पावर x कीजिए, शिफ्ट अब 10 पावर x किए, अभी वैल्यू से एंटर कीजिए 0.1019 का वैल्यू पुट कीजिए। सो 1.026 का हमारा 1.026 वैल्यू का हमारा नियरली आ जाता है, राइट स्टूडेंट्स। ये इस तरीक़ा से हम लोग ने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
इस तरीका से हम लोग को न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. सो जीरो रहे ना रहे, वैल्यू विल कम्स ओनली लाइक दिस ओनली, राइट. 309, राइट. सो यहाँ पे हमारा इस तरीका से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स. ये आपको अच्छे तरीके से समझ पे आया होगा. सो ये हमारा वैल्यूज को जो है आपने समझ सके. तो ये है हमारा एक न्यूमेरिकल, राइट. ये है हमारा एक न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे. स्टूडेंट्स, हम लोग और एक न्यूमेरिकल में देखेंगे. इस न्यूमेरिकल में, पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग देखे हैं सुपर हीटेड कंडीशन में हम लोग कैसा न्यूमेरिकल बनाना है. इस न्यूमेरिकल भी सेम न्यूमेरिकल है. लास्ट टाइम में टेम्परेचर नहीं दिया है. हियर दे गिव द टेम्परेचर that is 60 degrees. Once I will read the question, then we can understand easily. So a vapor compression refrigerator uses methyl chloride R40 and operates between the temperature limits of -10 degrees and 45 degrees at an entry to the compressor. The refrigerant is dry saturated, and after compression the refrigerant is dry saturated, enters to the compressor. The refrigerant is dry saturated, and after the compression it acquires a temperature of 60 degrees. Find the COP of the refrigerator. So now we will discuss how we will find out this equation, this numerical. So let us these are the data is like this: temperature, enthalpy, entropy. So liquid, vapor, liquid and vapor. Here it is an HF, here it is an HG, it is an HF, it is an HG, right? So let us we will discuss how we can solve this problem. So let us, T1 is equal to given data, T1 is equal to -10 plus 273, that is 263 Kelvin. So T2 dash or T3, that is 45 plus 273. How much it is? 45 plus 273 means आपको आएगा हमारा 318 Kelvin, right? 318 Kelvin. So now it acquires a temperature of 60 degrees. It means T2 is हमारा 60 degrees, means 60 plus 273, that is हमारा इतना है 60 माने 6 6 12 13 313 हमारा 333 Kelvin, right? 333 Kelvin. So find out the COP is equal to हमारा कितना है, ये तो हमको पता होना चाहिए. सो हमारा डिग्री ऑफ सुपर हीट हमारा इस पे हमने दिया ही नहीं है. हमारा डिग्री ऑफ सुपर हीट भी हमको चाहिए, तो डिग्री ऑफ सुपर हीट को हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें कितना है, राइट? तो हम लोग चलिए पहले हम बात करते हैं, राइट? पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे क्या क्या है. तो पहले हमने डायग्राम को ड्रा कर देते हैं. डायग्राम को हमने ड्रा कर देंगे हमने. तो पहले हमने डायग्राम को ड्रा कर देता तो हमने अच्छा हो जाता, आपको समझ में आ जाता है. डायग्राम को ड्रा कर देते. TS डायग्राम को. एट द कंप्रेशन द रिफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड माने यहाँ पे हमारा पॉइंट रहेगा, ड्राई सैचुरेटेड. So it is superheated and it is again dry saturated and again, right? 1 2 2 dash 3 4. It is T1 is equal to हमारा T4 होगा, T2 dash is equal to T3 होगा, यहाँ पे हमारा T2 होगा. So pH डायग्राम भी देखे हमने. pH डायग्राम के पास में क्या है? It is dry saturated. First one it is dry saturated, and then superheated, and then dry saturated, and then हमारा 1 2 2 2 dash 3 4, right? That is P1 is equal to P4, P2 dash and P3 P2 are same.
राइट। ये हमने डिस्कस करते, ये हमारा H1, ये हमारा H2, राइट। H1 है, H2 है, H2 डैश होगा, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये H2 डैश होगा, राइट। ये हमारा HF3 इज इक्वल टू HF4, राइट, HF4 करके हमने देख सकते हैं। तो अभी हमने सॉल्व करना है। सो here what happened, so if this line will be, if you like this line, so it is one S1 is equal to S2, ये लाइन हमारा स्ट्राइट रहेगा, हम ऐसा किया है लेकिन ये स्ट्राइट पे रहेगा, राइट। ये हमारा स्ट्राइट पे रहेगा, इंक्लाइन पे नहीं है, स्ट्राइट पे होना चाहिए, बिकॉज ऑफ S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज इक्वल टू S2 करके हमको लिखना है। तो ये यहाँ पे हमने ड्रा कर सकेंगे TS डायग्राम, आपको अच्छा कन्फ्यूजन मत करो। यहाँ पे क्या होना है, यहाँ स्ट्राइट लाइन गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 2 2 डैश 3 4। सो यहाँ पे जब करेंगे S1 इज इक्वल टू S2, राइट, S1 इज इक्वल टू S2। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखेंगे सॉल्व कैसा किया जाए। तो हमारा S1 is equal to S2, we know that, right, but find out the S2 value, S2 is equal to S2 dash plus 2.3 CP log T2 by T2 dash, right, ये है हमारा फॉर्मूला। सो CP इज अननोन वैल्यू, वी फाइंड आउट द CP क्यों चाहिए हमको, H2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए। सो दैट्स वाई। सो S2 माने क्या है, ये सब कुछ व्यापर कंडीशन है, S2 भी हो, S2 डैश भी हो, ये सब व्यापर कंडीशन का पास में है। सो ये सब कुछ हमारा व्यापर कंडीशन पे, ये एंट्रोपी होगा तो SF SG होगा। तो क्या होगा यहाँ पे हमने 45 का पास में हमारा SG वैल्यू 1.587, that is S2 dash, and S2 is हमारा 1.637 होगा, because of S1 is equal to S2, S1 is equal to S2, that's why that is S1 is equal to S2, that way that is 1.637। so यहाँ पे लिख सकता है हमने S1 is equal to S2, that is 1.637, एंड S2 डैश इज इक्वल टू कितना है हमारा, दैट इज वेपर, SG माने वेपर, दैट इज 1.587, 45 डिग्रीज का पास में इट इज 1.587, सो 1.587। सो नाउ यू विल पुट द वैल्यूज 1.637 प्लस S2 डैश माने 1.587 प्लस 2.3 CP log T2 dash, T2 is हमारा 333 means 333 318 333 318, right। so now we will calculate these things, then what happened, it will comes हमारा यहाँ पे ये पूरा हमने कर देते हैं एक सिंपल स्टेप, 1.587 प्लस CP कितना आएगा, हमने यहाँ पे देखते हैं log 333 बाई 318 हो गया 0.02 इंटू 2.3, it will comes 0.046 CP। so यहाँ पे 1.637, so CP is equal to 1.637 minus 1.587 by 0.046, तो 1.637 minus 1.587 divided by 0.046, it comes 0.826, 1.086 करके हमने आया है। तो 1.086 किलो जूल्स पर केजी केल्विन।
So now we find out the H1 value, H2 value and then हमारा ये कितना है. So H1 it is in a वेपर कंडीशन. सो डायरेक्ट हमने क्या होगा Hg वैल्यू ले लेना है. हमारा Hg वैल्यू जो रहेगा हमारा वो वेपर कंडीशन है, इसी के लिए हम लोग 460 डायरेक्ट ले लेते हैं. सो इट्स मीन्स H1 इज इक्वल टू Hg दैट इज 460.7 किलो जूल्स पर kg. सो H2 वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए. H2 डैश प्लस Cp इंटू T2 माइनस T2 डैश, राइट. H2 डैश कितना है. H2 डैश माने हमारा वेपर कंडीशन. वेपर कंडीशन माने Hg का वैल्यू 483.6 प्लस Cp is 1.086, T2 is हमारा 333 माइनस that one is 318. So find out this value. It will comes near 483.6 plus 1.086 into 333 minus 318, 499.89 499.89 kilojoule per kg, right. 499.89 kilojoule per kg. So what is HF3 is equal to H4. What is HF3? HF3 माने हम लोग का मेन हमारा 45 डिग्रीज का पास में हमारा HF का जो वैल्यू है लिक्विड लाइन का वो रहेगा 133, राइट. 133. सो नाउ 133 किलो जूल पर kg, 133.3 किलो जूल्स पर kg, 133.0 किलो जूल्स पर kg, राइट. नेक्स्ट हमने ये देखेंगे इस पे, ये इसमें हमने ये देख सकता है. तो 133 किलो जूल्स पर kg हमने देखे. तो COP इज इक्वल टू हमारा H1 माइनस HF3 बाय H2 माइनस H1. व्हाट इज H1? 460.7 माइनस 133 बाई हमारा 499.89 माइनस 460.7. तो 460.7 माइनस 133 डिवाइडेड बाय 499.89 माइनस 460.7. So it came around 8.36. 460.7 113 हमने किया गया है. तो 113 डिवाइडेड बाय 499 हमारा 89 माइनस 160.7. सो दिट्स इन इक्वलेंट टू 8.36. COP इज हमारा 8.36. स्टूडेंट्स ये इस तरीका से हमने इसको आंसर को सॉल्व करना है. इस तरीका से हम लोग इस आंसर को सॉल्व करना है. तो लेट अस हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो पहले हमने क्या किया, तो कैसे कैसे हमने न्यूमेरिकल को बनाया है. तो इसमें हमारा जब न्यूमेरिकल दिया HF HG SF HG का डिनोट किया है. सो सुपरहीटेड कंडीशन में इट इज इन ए वेपर कंडीशन, दैट्स वाई हम लोग वेपर कंडीशन के पास में लिक्विड लेना है. तो पहले वेट ड्राई कंडीशन में क्या है, वो लिक्विड कंडीशन पे था. सो इसलिए लिक्विड का हमने एंट्री किया है. x1 से हमने x2 से हमने किया है, राइट. सो यहाँ पे हमने यह करेंगे. तो यहाँ पे हमने ये कर सकते हैं. तो हमारा T1 इज इक्वल टू -10 प्लस 273 दैट इज 263 केल्विन. T2 डैश इज इक्वल टू T3 दैट इज 318. T2 इज 60 प्लस 273 330 केल्विन. सो TS डायग्राम हम ड्रा करेंगे इस तरीका से. S1 इज इक्वल टू S2, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T4 होगा. यहाँ पे हमारा T2 डैश इज इक्वल टू T3 होगा. यहाँ पे हमारा T2 रहेगा, राइट. यहाँ पे हमारा T2 रहेगा. सो इस तरीका से हमने TS डायग्राम ड्रा किया. इस तरीका से हमने PV डायग्राम भी PH डायग्राम भी हमने ड्रा किया, राइट. नेक्स्ट हमने क्या किया, सो वी डोंट नो द CP वैल्यू, बट वी नो द S1 इज इक्वल टू S2.
सो S1 इज इक्वल टू S2 मैंने S1 इज इक्वल टू S2 करके हमने दोनों करके प्रूव किया. दैट इज 1.S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 1.637 फ्रॉम द टेबल. S2 dash is equal to 1.587. So now I put the values here. Now I enter into the values here 1.637. So find out the CP value. The CP value came 1.086 kilojoules per kg Kelvin. So then H1 is equal to Hg equal to 460.7 kilojoules per kg. H2 is equal to H2 dash plus Cp into T2 minus T2 dash. So if you put the values, H2 value will came 499.89 and then HF3 H4 is equal to 133 kilojoules per kg. So COP is equal to H1 minus HF3 by H2 minus H1. If you put the values, the value came around 8.36. स्टूडेंट्स ये 2 न्यूमेरिकल्स है व्हेन द एंड ऑफ द कंप्रेशन इज सुपर हीटेड. पहले न्यूमेरिकल में हमारे T2 टेम्परेचर नहीं दिया, T2 का टेम्परेचर फाइंड आउट किया बाय यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला, राइट. नाउ Cp नहीं दिया, Cp हमने फाइंड आउट करके H2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है. तो स्टूडेंट्स ये आप लोग को एग्जाम्स में कभी पूछेगा तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.